بہت ساری باتیں کینیڈا کو لے کے آپ نے اپنا انٹینٹ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ البرٹا کو بینیفٹ دیں گے. کیا اس کے لیے پہلے کوئی کاروبار ہونا ضروری ہے یا کوئی پلان ہونا ضروری ہے؟ انٹرپرینورز کے لیے جنرل ورک پرمٹ نہیں ہے. اس میں آپ کے جینوئن انٹینٹ ثابت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. وہاں کی کینیڈین ایجوکیشن یا ڈگری آپ کے پاس ہو یا پاکستان سے بھی اگر آپ کی کوئی ڈگری ہے اور یہ بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے C11 کے لیے کوالیفائی کر لیتے ہیں آپ. السلام علیکم ویورز، میں ہوں اعجاز راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا مستقبل اعجاز راہی کے ساتھ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرامز میں مختلف سیلیبریٹیز کو، مختلف شخصیات کو دعوت دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کی جا سکے. ہمارا یہ پروگرام ان تمام نوجوانوں کے لیے، ان تمام انٹرپرینورز کے لیے جو اپنا مستقبل بیرون ملک تلاش کر رہے ہیں یا وہاں جا کے اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، ان کی خاص رہنمائی کے لیے وہ تمام تر معلومات جو آپ کو چاہیے اس کے لیے یہ پروگرام ہم تیار کرتے ہیں. آج ہمارے درمیان امیگریشن ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ انگلینڈ سے انہوں نے اپنی ڈگری LLM کی ڈگری کی ہے اور وہاں پہ ایز رجسٹرڈ ہیں فارن لائر کے طور پر SRA کے انڈر. فوزیہ خان ایڈوکیٹ، ویلکم میم. تھینک یو ویری مچ اعجاز صاحب. اب یہ ایک اپنی فرم کی ڈائریکٹر بھی ہیں جو کہ اسپیسیفکلی اس پہ کام کرتے ہیں. میم، بہت ساری باتیں کینیڈا کو لے کے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور کینیڈا ایک ایسا ڈیسٹینیشن ہے تمام لوگوں کے لیے، ایک اٹریکشن والا پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ وہ جانا پسند کرتے ہیں، سیٹل ہونا پسند کرتے ہیں. ہمیں بہت ساری کیوریز، بہت سارے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں. آج ہم نے آپ کو خاص طور پر اس بات کے لیے دعوت دی ہے کہ ہم البرٹا میں جو آپشنز ہیں اس کو لے کے، امیگریشن کو لے کے، اس کے بارے میں ہم بات کریں. اس میں ایک نام ہے جی، جیسے وہ کسی طیارے کا نام ہے C11. ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے C11، کیا پروگرام ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ C11 اعجاز صاحب ورک پرمٹ ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو مس لیڈنگ انفارمیشن بھی ہے. یہ ایسا ورک پرمٹ ہے جو انٹرپرینورز کے لیے ہے، جس میں آپ اگر اپنی فرم اسٹیبلش کرتے ہیں البرٹا کے اندر، آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں جس کو سیلف امپلائڈ کہتے ہیں. آپ اپنی کمپنی رجسٹر کرتے ہیں اور اس کمپنی کے اوپر ہی اپنے آپ کو اسپانسر کرتے ہیں. بیسکلی یہ ٹائپ آف ورک پرمٹ جو انٹرپرینورز کے لیے. اس میں دو کیٹیگریز پرٹیکولرلی ہیں کہ جس طرح میں نے بتا دیا کہ آپ اپنے آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی آلریڈی ایگزسٹنگ بزنس کے اندر 51% کے شیئر ہولڈر بن جائیں. آپ نے اپنا انٹینٹ شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ البرٹا کو بینیفٹ دیں گے. ان براڈر سینس آپ کینیڈا کو بینیفٹ دے رہے ہیں. C11 یا C11 ورک پرمٹ جو ہے یہ فیڈرل کا حصہ ہے، لیکن البرٹا میں پرٹیکولرلی اس کو انیشیٹ کیا ہے اپنی کمیونٹیز کے اندر. ریجن میں آپ اپنا بزنس جہاں پہ ان کے پرائورٹی سیکٹرز ہیں ان کو مطلب اس کے تھرو اسٹیبلش کریں یا میٹروپولیٹن سٹی میں، جس کا فردر کرائٹیریا ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا اس سے لگ رہا ہے کہ یہ شاید کوئی کاروباری حضرات کے لیے ہے. کیا اس کے لیے پہلے کوئی کاروبار ہونا ضروری ہے یا کوئی پلان ہونا ضروری ہے اس کے اپلائی کرنے یا اس کے اندر اپنے آپ کو میٹ کرنے کے لیے کنڈیشنز کو؟ اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے کسی بندے کا وہ کیا ہونا چاہیے. اگر مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ آلریڈی بزنس کرتے ہیں یا آپ کی ایکسپرٹیز پروفیشنل کے طور پہ موجود ہے. فار ایگزامپل آپ بزنس مین ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو کوالیفائی کرتے ہیں. بزنس مین کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر مثلاً اپنا بزنس رن کر رہا ہے اور وہ بزنس کینیڈا میں اس کے البرٹا کے بینیفٹ میں جانے والا بزنس ہو. ہم نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے تو یا کوئی انوویٹو آئیڈیا کے اوپر ہو تو اس سینیریو میں اس کو رن کرتے ہیں. تو یہ بزنس والے لوگوں کے لیے، انٹرپرینورز کے لیے جنرل ورک پرمٹ نہیں ہے. جس طرح کوئی امپلائر کسی کو بلاتا ہے، اس میں ضرورت ہوتی ہے لیبر مارکیٹ امپیکٹ کے تھرو، مطلب آپ جاتے ہیں LMIA اپروول ہونا چاہیے. اس میں LMIA کی ایگزمپشن ہے انٹرپرینورز کو. اس کے لیے کوئی کم از کم سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ کتنی ہونی چاہیے؟ جیسا اگر تو آپ اپنے طور پہ یہ جس میتھ کو بہت سارے لوگ غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں. میں نے بہت سارے کنسلٹنٹ سے یہ سنا ہے، ایگزیکٹلی ایجنٹ سے سنا ہے کہ وہ اس چیز میں کہ اتنا کہ آپ کے اگر اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ہے یا 2 کروڑ ہے تو آپ اس چیز کو رن کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے جینوئن انٹینٹ ثابت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں فار ایگزامپل تو آپ نے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا ہے تو
इनिशियल रिक्वायरमेंट किसी रीजन से अप्रूवल के लिए, एंडोर्समेंट के लिए, या अपने मेट्रोपॉलिटन यानी सिटी में वहाँ पे अल्बर्टा में वो करना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी $1 लाख की होनी चाहिए, और ये आप उसका प्रपोजल को $3 लाख तक लेके जा सकते हैं, जो कि मतलब कम है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। ये आपने अपना शो करना होता है, और उस बिजनेस के प्रपोजल को भी उसी तरह जस्टिफाई करना होता है कि मैं ये मतलब इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में है और इतनी अमाउंट का मैं बिजनेस करना मतलब इनिशियली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए ये कंपनी एस्टैब्लिश है, इतने लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा वहां पे। वो चीजें साबित करती हैं कि आपकी इंटेंट जो है वो कनाडा की तरफ या अल्बर्टा की तरफ जेन्युइन है। तो इसमें कोई खास किस्म के कारोबार हैं, कोई कैटेगरीज हैं कि ये वाले ही किए जाएं, या कोई भी कारोबार किया जा सकता है? उनकी अगर आप ये देखें तो अल्बर्टा की मतलब लिस्ट है, एनर्जी के ऊपर, एग्रीकल्चर फूड के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मैंने आपको बार बार ये बोला है कि आपको वहां पे उसको अल्बर्टा के बेनिफिट में आने वाली चीज को साबित करना जरूरी होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो अगर मैं कह सकती हूँ कि कैफेज रेस्टोरेंट्स या रिटेल शॉप्स उसमें क्वालिफाई करती हैं या नहीं, तो वो कर सकती हैं। जी बिल्कुल। ठीक हो, तो इसके लिए फर्ज किया कोई एक आपके पास आता है, कोई क्लाइंट है, वो कहता है कि जी मेरे पास इतना सरमाया है कि मैं ये कर सकता हूँ कि C11 के लिए मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, तो वो जो प्लान है, जो प्रपोजल है, क्या उसे खुद से बनानी पड़ती है या आप उसमें कोई हेल्प करते हैं, आप या आपका ऑफिस जो है? डेफिनेटली हम हेल्प करते हैं, क्योंकि आप बेसिकली बिजनेस प्लान को मार्केट रिसर्च के हिसाब से देना होता है। यानी आपने कनाडा की या अल्बर्टा की मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें ये नहीं है कि हम कंप्लीटली अपने तौर पे बनाते हैं। ऑब्वियसली इट्स मतलब म्यूचुअल फीडबैक कि वो उस बिजनेस को कैसे कर रहे हैं, या पहले उनका बिजनेस रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट, और उसके बाद उसको रिलेट करते हुए वो वहां पे अगर रन करेंगे तो उसका क्या सिनेरियो होगा। वो कंप्लीटली बिजनेस प्लान हम रन करते हैं, एंडोर्समेंट हम लेके देंगे, मतलब जो उसमें है चीजें। अच्छा, एक खास चीज़ जो इसमें है वो क्वालिफिकेशन। क्या इसके लिए ज़रूरी है कि गैर मुल्की जो वहाँ की कैनेडियन एजुकेशन या डिग्री आपके पास हो, या पाकिस्तान से भी अगर आपकी कोई डिग्री है और ये बिजनेस आप करना चाहते हैं तो इसके लिए C11 के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं आप? जी, असल में ये एक इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है बेसिकली अल्बर्टा का, जिसकी फर्दर स्ट्रीम्स हैं आगे। उनमें फॉरेन ग्रेजुएट स्ट्रीम आती है फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जिन लोगों ने अपनी डिग्री ली है और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो उसके हिसाब से जा सकते हैं। वो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इंटरनेशनल ये जो आप पूछ रहे हैं फॉरेन ग्रेजुएट, वो फॉरेन ग्रेजुएट के तौर पे प्रेफर्ड तो कैनेडियन एजुकेशन आपकी होनी चाहिए वहां से। लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंडेड वे में देखें तो C11 वर्क परमिट के अंदर वो जनरलाइज फॉर्म में अपने आप को लेके जा सकते हैं। फिर उन्हें अपनी डिग्री, उसका इनोवेटिव आइडिया और उसके साथ मतलब अपना वर्क का वो सिनेरियो देना है। उसमें उनको ये फायदा है कि वो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ भी उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। नाज़रीन, मिस फौजिया खान हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। Are you seeking admission and a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry. Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by My Future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process, importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application, and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashrak Digital. Welcome back, Nazreen.
नाज़रीन, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे C11 के बारे में, कनाडा का एक प्रोग्राम है, और साथ ही फॉरेन जो ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है उसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मिस फौजिया खान, जो कि इनकी कंपनी और ये जो खुद हैं वो एडवाइज़र हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी ये खिदमात मुहैया करती हैं। मैम, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है उसमें एज का एक तो बता दें कि एज की कोई लिमिट है कि किस साल तक आप कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते? एज की बेसिकली स्पेसिफिकली कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है जब आप अपनी एंटरप्रेन्योर, ये C11 वर्क परमिट है एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के ऊपर, आप वर्क परमिट से जब PR में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपकी एज जो है वो मैटर करती है। जिसका दूसरा मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रीम PR की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल, ये लीडिंग टू PR है। बेसिकली C11 जो है C11 वर्क परमिट, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ऑटोमेटिकली लीडिंग टू PR है, यानी आप उसके बाद PR का कई पाथवेज हैं जिनको आप ले सकते हैं। एक तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप PNP नॉमिनेट कर देता है, प्रोविंस आपको नॉमिनेट कर देता है, जिस तरह अल्बर्टा है तो वो आपको नॉमिनेट कर देगा। उसके अलावा भी मतलब आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी जा सकते हैं कि आपके अगर फिर आपको पॉइंट्स अपने साबित करने होते हैं, और आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर भी जा सकते हैं क्योंकि कनाडा में आपका बिजनेस है। तो मल्टीपल आगे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप PR को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये PR के लिए मिनिमम मैक्सिमम की ड्यूरेशन है कि इतनी देर के बाद ही आप कर सकते हैं या कोई स्ट्रेट अवे पाथ है? अगर C11 वर्क परमिट के ऊपर हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वर्क परमिट 2 साल का है। ठीक है, 2 साल में आपको 18 मंथ्स अपनी प्रोग्रेशन शो करनी होती है, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना शो करना होता है। टैक्स तो ऑब्वियसली आप पे करते हैं व्हेन यू हैव एस्टेब्लिश्ड अ बिजनेस ओवर देयर। तो उस सिनेरियो में फिर आपका मतलब उसके बाद आपने ये टाइम पीरियड के बाद आपने PR की तरफ जाना है। तो PR की तरफ जाते हुए फिर आगे उसकी परमानेंट रेजिडेंसी की जितनी स्ट्रीम्स हैं उनमें वो देखा जाएगा कि आप किसको क्वालिफाई कर रहे हैं। आप एजुकेटेड हैं तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री में जा सकते हैं, फिर आपको इंग्लिश का और वो सारा क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, तो चूंकि कनाडा में आपका बिजनेस है और वो बिजनेस देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे है, तो उसमें देखा जा सकता है। या फिर आपका मोर लाइकली कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में ये इतना फिट नहीं होता, लेकिन आप PNP नॉमिनेशन लेके उसमें जा सकते हैं। किसी भी इमिग्रेशन या बिजनेस इमिग्रेशन, चूंकि ये भी उसी तरह की एक क्लास है कि आपने बिजनेस के लिए करना, इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सारे क्लाइंट्स का ये सवाल होता है कि अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ तो कितने % मैंने कैनेडियन को एम्प्लॉय रख सकता हूँ और कितने में इंटरनेशनल जो है उनको रख सकता हूँ? क्या ऐसी इसमें भी कोई चीज़ें हैं या मजबूरी है कि आपने सिर्फ कैनेडियन जो स्टाफ है वो रखना है? बेसिकली वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो या तो मतलब PR के ऊपर होते हैं या TR के ऊपर होते हैं, या आप स्टूडेंट में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, इलीगल्स तो आपको रखना अलाउड ही नहीं होता। आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स को आप टेम्परेरी जॉब दे रहे होते हैं क्योंकि उसमें आपके 20 आवर्स होते हैं जो उनको अलाउड होता है। बाकी आप PR होल्डर्स को रखेंगे या नेशनल्स को रखेंगे, उसमें वो PR होल्डर नेशनल इक्वली क्वालिफाई करते हैं। आपने सिर्फ अपने प्रपोजल में ये साबित करना है कि मैं कनाडा को या अल्बर्टा को इसमें क्या बेनिफिट दे सकता हूँ, कितने लोगों को हायर करूंगा। स्टेट वाइज कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं, आपके ख्याल में अल्बर्टा में अगर हम ये सारा कुछ करते हैं तो इसमें PR के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जल्दी हो जाता है काम? बेसिकली अल्बर्टा ने बाकी प्रोविंसेस में भी LMI एग्जम्पशन है। कोई 13 प्रोविंसेस हैं जिन्होंने अभी 2026 में LMI एग्जम्पशन दी है, लेकिन आज हम चूंकि अल्बर्टा के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली अल्बर्टा की मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं जिनके अंदर मतलब ये ऑप्शन LMI एग्जम्पशन की है, तो इसलिए वो प्रेफर्ड है, उनमें आपको बेनिफिट्स ज्यादा हैं। आप C11 वर्क परमिट के ऊपर अल्बर्टा ने पर्टिकुलरली फेडरल से ये परमिशन लिया है, तो इसलिए उसका बेनिफिट अल्बर्टा को सबसे ज्यादा है। फिर आप फॉरेन ग्रेजुएट स्ट्रीम को देखें तो वहां पे भी ये अल्बर्टा रन कर रहा है, तो अल्बर्टा में ये ऑप्शन मौजूद है, तो इसलिए ये प्रेफर्ड है। मैम, आपने अभी ये 2 बहुत अच्छी स्ट्रीम्स यानी C11 और जो फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के बारे में बात की, कुछ जनरल क्यूरीज हमारे पास आई हुई हैं, उनके हवाले से हम बात थोड़ी सा आपसे पूछ लें। कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करते वक्त मेजरली जो एप्लीकेंट है वो क्या ऐसी गलती करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए?
ताकि उनकी एप्लीकेशन जल्दी मूव हो और आगे प्रोसेस चल पड़े? अभी मैंने अपने तौर पे भी उस बारे में अलग से वीडियो दी है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी ये बता रही हूँ कि कनाडा अब IRCC को अगर देखा जाए तो वो एप्लीकेशन को रिटर्न कर देता है अगर आपका पर्टिकुलरली लोग जहाँ पे मिस्टेक करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस आप उठा के कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। उसमें आपका डिफाइंड होता है कि आपको रूटीन में जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और जो कंपनी के अंदर का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो रेलेवेंसी आपकी शो होनी चाहिए। जेडीज जो है वो मैच करने चाहिए। आपकी डिफाइंड जेडीज आपकी तरफ से नहीं हो बल्कि आपकी जेन्युइन जेडीज जो ओरिजिनली है। एट दिस टाइम जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, एनी पीस ऑफ एडवाइस? अपने मेरी सबसे बड़ी मतलब एडवाइस ये है कि आप अगर ड्रीम करते हैं बाहर जाने का जो कि आपके फायदे में होता है, आपने वापस अपने मुल्क को ही भेजना है और अपने ही फैमिली के साथ अटैच होना होता है। ये नहीं है कि आप अलग हो जाते हैं। अब दौर ग्लोबली है चीज़ें, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब आप चले गए तो चले ही गए हैं। तो द होल वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल मतलब विलेज। तो उस सिनेरियो में मेरी नज़र में अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए एफर्ट कभी छोड़नी नहीं चाहिए। एफर्ट डालते रहना चाहिए, अपना प्रोफाइल रखें। ये ना सोचें कि मेरी इंग्लिश नहीं है या मेरी एज जा रही है या वो चीज़ें। जब आप क्विट कर देते हैं ना, मतलब एक ही एडवाइस है, डोंट क्विट। इस सारी एफर्ट को बूस्ट करने के लिए एक कंसल्टेंट जो है वो कितना अहम रोल प्ले करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लाइंट के लिए? देखिए, मैं एज लॉन्ग एज अगर मैं अपनी तरफ देखूं तो एडवाइजरी देनी है। फॉर एग्जांपल हम लीगल एस्पेक्ट को देखते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस के बारे में एडवाइस होती है जिनके मतलब रन किया जा रहा होता है, तो फीडबैक डिफरेंट होता है हमारे पास। व्हेन यू आर रनिंग तो आप इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं, तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कंसल्टेंट। तो आप क्या मशवरा देती हैं अगर जो हमारे जितने इस वक्त क्लाइंट्स आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स या जो इस स्ट्रीम में दिलचस्पी रखते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करती हैं कि वो कैसे कांटेक्ट करें, किस तरह से इस प्रोसेस को शुरू अगर वो करना चाहते हैं तो व्हाट इज द एक्चुअल पाथवे? मेरी नज़र में एक तो मतलब वो प्रोसेस के लिए अपनी तसल्ली ज़रूर करें जेन्युइननेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना रिसर्च भी ज़रूर करें। IRCC की वेबसाइट पे हर चीज़ मौजूद है, कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसके अलावा डायरेक्टली मशरिक का प्लेटफॉर्म है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे से डायरेक्टली इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, आज मिस फौजिया खान की मौजूदगी का हमने बहुत फ़ायदा उठाया कि आज दो बहुत ख़ास स्ट्रीम्स जो कि C11 और जो फॉरेन ग्रेजुएट जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है उसके बारे में बातचीत की। आप हमें इसी तरह से लिखते रहें, पूछते रहें, हमारे प्रोग्राम्स को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई मालूमात आपको चाहिए, आप हमें ज़रूर लिखें। किसी किस्म की भी जो मालूमात आपको फराहम की जा रही हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। अगर आपने अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं आप हमारे साथ रब्ता करें। मैम फौजिया खान की टीम जो है वो इसमें आपको असिस्ट कर सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान एजाज राही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।